कारोबार संबंधी इश्तिहार लगवाउण लई संपर्क करो साडे नंबर 2013124180 ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ preetnamausa@gmail.com। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਾਸੀ ਗੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵਰਦੀ ਫਾੜਨ ਦੇ 2 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਤ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਸੀ ਗੇਟ ਸਿਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਾਸੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਿਨਾ ਨੰਬਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕ ਕੇ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਪਗੜੀ ਤੱਕ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ PSC ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਰਦੀ ਫਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਰੁਕ ਕੇ ਜੀ ਕਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਾ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜੀ, ਦਾਰੂ ਨਾ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ, ਪੇਪਰ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਪੇਪਰ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪੈ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਮਲਾਈ ਦੇ ਪੈ ਨੇ, ਫਿਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਵਰਦੀ ਆ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਪਾਰਟ ਤੇ ਵਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਬਟਨ ਤੋੜਤੇ ਜੀ, ਗਲ ਪੈ ਗਏ, ਸੱਟ ਲਾਤੀ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀ। ਟਰੱਕ ਸਟਾਫ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅੱਜ? ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਲੜਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਲਾਨ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿੰਘ। ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, 2 ਜਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਫਲਾਣਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਪੱਟਦਾ ਜੀ, ਵਰਦੀ ਪਾਰਟੀ। PSC ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਬਸ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਥਾਣੇ ਜੀ, ਥਾਣੇ SO ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟਾਫ ਆਇਆ ਜੀ, ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਵੇਖ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਬਾਸੀ ਗੇਟ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਉਧਰ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬਾਸੀ ਗੇਟ ਤੇ। 2 ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਥੋੜੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਫੜ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕੀ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਲਚਾ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਫੈਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ। जी हाँ, मिलावटखोरां ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਿਆਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨਿੰਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਾਰਖਾਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਅੱਖੀ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਮਾਤਰ ਲਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ 2 ਤੋਂ 3 ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। जिस संबंधी सारी जानकारी जिला सेहत अफसर जतिंदर कुमार ने दी है। कर देंगे आगे तो बिक जाता हमारा माल, तो बिक जाता से जाता रह जाएगा। जैसा कबाड़ी लेता मजे वाला
ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ, ਪਨੀਰ ਦੇ ਸੈਂਪਲ, ਘਿਓ ਦੇ ਸੈਂਪਲ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆਨੇ ਸਟੋਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਸਟੱਫ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਪੂਰੇ ਚੈਕਿੰਗ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੱਸ ਲਈਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ FSO ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗੇਂਸਟ ਨਾ ਜਾਣ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। केजरीवाल को जमानत मिल गई है, जिस तरह से CBI ने आरोप लगाया था एक्साइज पॉलिसी स्कैम में तथाकथित भ्रष्टाचार को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली वालों की और देशवासियों की ओर से कहना चाहूंगा, वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल, वी ऑल मिस्ड यू। एक लंबे संघर्ष के बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इस देश के न्याय के सबसे बड़े मंदिर ने आज अरविंद केजरीवाल जी को जेल की सलाखों से आजाद करने का फैसला सुना दिया। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ब्रांड है, एक सच्ची ईमानदार राजनीति का। और इस राजनीति और इस ब्रांड की मुझे लगता है बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। लेकिन आज जब 6 महीने बाद अरविंद केजरीवाल जी फिर लौट रहे हैं तो दिल्ली की हर मां ऐसे खुशी मना रही है जैसे उसका अपना बेटा कई महीनों बाद घर लौट रहा। दिल्ली की हर बहन ऐसे खुशी मना रही है जैसे कई महीनों बाद उसका अपना भाई घर लौट रहा हो। और आम आदमी पार्टी मुझे लगता है कि आने वाले समय में और मजबूत होगी। इस संघर्ष से आम आदमी पार्टी को और ताकत मिलेगी। और पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते दिल्ली का एक दिल्ली और पंजाब और पूरे देश भर का एक नागरिक होने के नाते मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फैसले का। और बस एक ही चीज कहना चाहता हूं इस भावुक लम्हे में कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कुचक्रों के बाद बाहर आएंगे। उनकी तमाम साजिशें रखी की रखी रह जाएंगी भारतीय जनता पार्टी वालों की। लेकिन साथ साथ बात सिर्फ केजरीवाल जी की जमानत की नहीं है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो। आपने एजेंसियों को अपना केज पैरेट बना के रखा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि CBI केज पैरेट की तरह से काम कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ पार्टी, सरकार या व्यक्ति के लिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। केवल देश के आम आदमी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, साफ भरोसा है कि आप चिंता मत करो। अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। संदेश साफ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि तानाशाही के खिलाफ देश का संविधान हर आम आदमी के लिए रक्षा के लिए है। और भारत में अगर किसी की चलेगी
ना तानाशाही की चलेगी, ना सीबीआई की चलेगी, ना ईडी की चलेगी, ना इनके तानाशाही कानूनों की चलेगी। भारत में अगर किसी की चलेगी तो देश के संविधान की चलेगी। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ संदेश है। दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संदेश से यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही थी। खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया आज कि जिस तरह से सीबीआई ने सीएम साहब को अरेस्ट किया, उससे यह साफ हो जाता है कि सीबीआई जानबूझकर केजरीवाल जी को अंदर रखने की मंशा के तहत उनको गिरफ्तार कर रही थी। यह बात आज के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ हो रही है। केजरीवाल जी को जेल में रखने की मंशा के तहत सीबीआई केजरीवाल जी को अरेस्ट करती है। और यह मंशा किसकी है? केजरीवाल जी ने कुछ गलत तो किया नहीं। मंशा है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की यह मंशा थी कि अरविंद केजरीवाल जी अंदर रहें जेल के। इसलिए जब ईडी से केजरीवाल जी बाहर आने लगे तो उस वक्त सीबीआई से उनको अरेस्ट कराया गया। बहुत सोची समझी साजिश के तहत सीबीआई ने किसी करप्शन में अरेस्ट नहीं किया, बीजेपी की मंशा से अरेस्ट किया है केजरीवाल जी को। यह बात हम कह रहे थे, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे इसको सही ठहराया है कि सीबीआई ने बीजेपी की मंशा को पूरा करने के लिए केजरीवाल जी को उस वक्त अरेस्ट किया जब वो ईडी के केस से बाहर आने वाले थे। तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर थोड़ा सा आत्मावलोकन करना चाहिए, शर्म महसूस करनी चाहिए इस बात के लिए कि इतना खुलेआम वो सीबीआई का दुरुपयोग कर रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो गई है बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी। थोड़ा उनको माफी मांगनी चाहिए देश से, देश के संविधान से, बाबा साहब से माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि किस तरह से वो एजेंसियों का दुरुपयोग करके दिल्ली के एक चुने हुए मुख्यमंत्री को अंदर डालते हैं, एक कट्टर ईमानदार आदमी को अंदर डालते हैं, और फिर जब एक एजेंसी के झूठे मुकदमों से वो छूटने वाले होते हैं तो फिर दूसरी एजेंसी को लगा के उनको अरेस्ट करवा देते हैं। यह बात आज एक्सपोज हो गई केजरीवाल जी के संबंध में, मुकदमे के जो बेल के संबंध में उन्होंने दिया। और तीसरी बात हम सब के लिए बहुत सुखद यही है, जो मैंने पहले भी कहा कि लोगों का अरविंद केजरीवाल जी के प्रति बहुत प्यार है। लोगों का प्यार, भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा और देश के संविधान का कवच, ये तीनों अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। और जब तक लोगों का प्यार अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक देश के संविधान का रक्षा कवच अरविंद केजरीवाल जी के साथ में है, केजरीवाल जी जैसे कट्टर ईमानदार आदमी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तानाशाह हुकूमत जिसने ईडी और सीबीआई को मिलाकर झूठ का पहाड़ खड़ा किया, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारे नेता और हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए। लेकिन आज मनीष सिसोदिया जी की रिहाई, उसके बाद बाकी सारे लोगों की रिहाई, और अब हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि जब ईडी से उनको जमानत मिल गई तो 22 महीने बाद वो सीबीआई सो के जागती है, जिसने 22 महीने पहले केजरीवाल जी से पूछताछ की थी, 22 महीने बाद सो के जागती है कि केजरीवाल को अरेस्ट करना है। इसका मतलब सीबीआई की अरेस्ट, ईडी की अरेस्ट, ये अपने खुद की जांच एजेंसी की अरेस्ट नहीं थी, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कराई गई अरेस्ट थी। तो तानाशाही का अंत होता है, झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए, और वो झुकाने वाला व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपने संघर्ष की बदौलत, अपनी ईमानदारी की बदौलत, अपनी निष्ठा की बदौलत दिल्ली के और देश के लोगों की सेवा करके पूरे देश में अपनी लोकप्रियता हासिल की है। उनको जेल के सीखचों के पीछे आप नहीं रख सकते, जेल के सीखचों के पीछे रख के उनके हौसलों को आप तोड़ नहीं सकते।
तो ये आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी का क्षण है, पूरे देश के लिए और दिल्ली के लिए बहुत ही खुशी का क्षण है। अब हरियाणा और दिल्ली के रण में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हम लोग पराजित करेंगे और केजरीवाल जी के बाहर आने के बाद उस अभियान में भी बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। आज फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सीबीआई सरकार का तोता है। तोता मैना, ईडी, सीबीआई, इनका इस्तेमाल करके आप बाबा साहब के संविधान को खत्म नहीं कर सकते। इनका इस्तेमाल करके आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। इनका इस्तेमाल करके आप दिल्ली की चुनी हुई सरकार को खत्म नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी और उनकी लोकप्रियता को खत्म नहीं कर सकते। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हुआ है। तो मैं फिर से एक बार अपनी पार्टी की ओर से, केजरीवाल जी की ओर से, देश के उन तमाम लोगों को और तमाम राजनीतिक दलों को, इंडिया गठबंधन को, जिसने इस पूरी लड़ाई में हम लोगों का साथ दिया, सबको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि इस अभियान। ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ।